Good afternoon, everyone. Hope you all are doing well. On behalf of NISM, I, Pragya, welcome everyone to today's webinar focused on simplifying a crucial decision in mutual fund investing. Mutual fund direct and regular plans, how to choose. In this session, we will unravel the differences between these plans, empowering you with the knowledge needed to navigate this choice confidently. Whether you are seeking higher returns, lower expenses, or aligning with your investment goals, understanding the nuances between direct and regular plans is essential. Keeping these thoughts in mind, we have organized this webinar, and to take this webinar, we have invited Mr. Kunj Bansal. Let me take this opportunity to introduce Mr. Kunj Bansal. Mr. Kunj Bansal is General Manager at NISM. He is a seasoned finance professional with almost 3 decades of corporate experience. In these years, he has worked at some of the best brands such as Reliance and Kotak after starting his career at UTI. He worked in the areas related to financial research, securities analysis, and portfolio management. He is an engineer and a management graduate from NMIMS University, Mumbai. He writes on contextual issues for various newspapers and magazines, and his valued opinion is sought by news channels like CNBC and ET Now. He speaks at seminars and conferences and lectures at management colleges. With these words, I welcome you, sir, and over to you. Thank you. Thank you, Pragya. Welcome everybody to this webinar on direct and regular plans. Obviously, direct and regular plans, when we say, we refer to the mutual funds. So the underlying assumption is that all those of you, we have about 300 of you having joined online to listen to this webinar. So I was saying the underlying assumption is that you know what is a mutual fund, you know the basic concepts of mutual fund, what are the types of funds and all other things. Because today's discussion will specifically remain restricted to direct and regular plans. In fact, in the chat window, I can already see some questions on SWP, that is systematic withdrawal plan, on RBI bonds, FDs, etc. So we'll see if we get time, we'll try to address them. But if you go through the history of the webinars that we have been doing, and of course the future, then what we try to do is we try to take each of these topics and try to address them in detail so that the understanding is clear. अगर हम इन सबको एक साथ ले लेते हैं, so I'll also speak mix of Hindi and English, क्योंकि वो एक हर बार डिमांड रहती है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलिए. तो अगर हम इन सारे टॉपिक्स को एक साथ ले लेते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर एक छोटा छोटा नाम के लिए आपको SWP, SIP, STP छोटी चीज लगती है, पर ये अपने आप में एक बड़ी स्टडी का मैटर है. इनफैक्ट एक पहले जो थोड़े टाइम पहले मैंने खुद एक वेबिनार एड्रेस की थी, वो इंडेक्स फंड्स पे, एक्टिव और पैसिव फंड्स पे की थी. वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो इसलिए हर एक टॉपिक की हम अलग अलग करते आए और वैसे ही करेंगे. तो आज का डिस्कशन स्पेसिफिकली डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स पे रिस्ट्रिक्ट रहेगा. मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है. क्विकली आप में से कोई भी एक या दो जन यस करके चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आवाज आ रही है. ओके, थैंक यू ओंकार. सो वील स्टार्ट. तो what are the direct plans and what are regular plans? Can anybody quickly type in the chat box? डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं और रेगुलर प्लान क्या होते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, या टू स्टार्ट विद आप क्या बेसिक एक या दो या तीन प्रश्न जो इस मामले में नहीं जानते हो, जानना चाहते हो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इस वेबिनार के थ्रू. तो हम ओके. सो विजय मीणा सेज विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंस. ओके, फेयर पॉइंट. डायरेक्ट विदाउट एजेंट. ओके. रेगुलर वाया डिस्ट्रीब्यूटर. वॉइस इज लो. ओके. आईटी टीम बैकएंड में अगर देखिए वॉल्यूम बढ़ सकता है तो. रेगुलर इज वाया डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, ठीक है. आई थिंक आप लोगों को एक फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि क्या डायरेक्ट प्लान होते हैं और क्या रेगुलर प्लान होते हैं. डायरेक्ट इज विद एएमसी विदाउट ब्रोकरेज. ओके, लेट्स ट्राई टू सी इन डिटेल. हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये जो हमारा एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गया है. अच्छा है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है. बट जो बहुत सारे लोग हैं, मैं देख सकता हूँ कि 300 में से खाली 15-20 लोग ये चीज टाइप कर रहे हैं. तो मुझे उन 250, 270-80 लोगों को भी एड्रेस करना है जो टाइप नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा अजम्पशन है कि उनको नहीं पता होगा. तो उनके लिए हम आगे चलते हैं.
तो इसके पहले कि हम डिटेल में जाएं, एक वर्ड होता है DIY। किसी को मालूम है क्या है, व्हाट इज DIY? डू इट योरसेल्फ, यस, वेरी राइट, डू इट योरसेल्फ। तो डू इट योरसेल्फ इज समथिंग जो हम लोग डे टू डे लाइफ में काफी करते हैं, काफी चीजों के लिए करते आते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारी चीजें आती है, छोटी मोटी रिपेयर्स हो जाते हैं, छोटे मोटे घर के काम हो जाते हैं, छोटा लैपटॉप का इशू हो जाता है, मोबाइल का इशू हो जाता है, वो सब चीजें हम DIY, डू इट योरसेल्फ करके हर चीज को हम कोशिश करते रहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे देना चाहेंगे DIY के, जो आप डे टू डे लाइफ में काम में लेते हैं? Okay, Vijayanand says English would be better. I will try. The idea is to address the audience of both Hindi and English. Okay, Abhishek says office, banking. Okay, school, electrical repair. Yes, Pramod, very important. Learning languages. Yes, banking. Okay, again, cooking. Yes, very important. So all these are examples of do it yourself. Selecting medicine. You have written selecting medicine, but should it be DIY or should it not be? When it comes to medicine, when it comes to medical profession, हम लोग को DIY करना चाहिए या should not be? Okay, not medicine. Okay, reading books, exercising. Okay, thank you very much for great response. So just for your information, मैंने इन्हीं सब examples को लेके यहाँ पे लिखा है that आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है कि हम कुछ छोटी मोटी रिपेयर है वो घर पे करते हैं। मोबाइल नहीं चलता है तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि उसको स्विच ऑफ करके ऑन कर दो। सो दैट्स अ बेसिक DIY कि लेट्स सी इफ इट स्टार्ट्स वर्किंग। सेम वर्क्स ऑन लैपटॉप आल्सो। इफ इट गेट्स हैंग्ड, व्हाट वी डू इज वी सिंपली switch it off and switch it on. If it is a charged, we take out battery. Of course, these days you get a mobile, you get laptop wherein you don't. DIY trading, okay, Jay Kumar. We will be digressing on that. So DIY trading is another thing that you need to think and decide whether you should be doing or not. So Yogesh says without knowledge, no DIY for investing as well. Okay, thank you Yogesh. Important point है, हम उस पे आते हैं. So coming back, children homework. So that's the other thing that we do when it comes to DIY. उनको जो घर से हमारे बच्चे स्कूल से होमवर्क लेके आते हैं, हम उनको बैठ के पढ़ाते हैं या उनका होमवर्क करवाते हैं. Vegetables. So that's something obviously DIY, क्योंकि कुकिंग ट्रेडिशनली आजकल तो मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन ब्लर्ड होता जा रहा है और होता जाना भी चाहिए, तो हम लोग सब करते हैं. इनफैक्ट मैंने वेजिटेबल्स का एग्जांपल यहाँ मोर स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है कि वेजिटेबल्स के DIY में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो धीरे धीरे कैटेगरीज होती जा रही हैं. एक ऑप्शन है कि हम सिंपली बाजार से जाके सब्जी ले आए और फिर उसको साफ करें, उसको काटें और फिर उसका खाना बनाएं. उसमें अब क्या एडवांसमेंट आ गए हैं कि अब आपको रेडी टू कुक वेजिटेबल्स मिलने लग गई है, मतलब वो साफ की हुई, धुली हुई और कट की हुई आती है. तो दैट इज मिड स्टेज ऑफ डूइंग DIY कि आप रेडी टू कुक लेके आइए और सिंपली बना लीजिए. Of course, there is a last stage wherein we can order ready to eat these days with Swiggy and Zomato, but that's not where we are going. I have specifically written one example here of IKEA. Now, IKEA we all know is a largely a furniture store and a brand, household goods and everything. What is the connection of DIY here? Can anybody? Assembling furniture, Muskan Khan has said. Okay. Can you highlight it more? We assemble ourselves, Navneet Kishan has said. Okay, good. Yes, so that's what I wanted to know, that when it comes to IKEA also, have any of you had an experience कि आपने कोई चीज IKEA से ऑर्डर की और वो अलग अलग पीसेस में आ गई और उसके असेंबलिंग इंस्ट्रक्शंस भी आपके आ गए घर पे, और पर आप किसी वजह से असेंबल नहीं कर पाए? कोई ऐसा है जो जिसको ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? Sandeep says no, Nikhil says yes, not till now. Lokender says yes, Deepak also says yes. So okay, so जिनका भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि आप असेंबल नहीं कर पाए, वेरी क्विकली क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से, या ऐसा क्यों हुआ? In case of IKEA, or I used drilling machine, Brian Pinto says okay. Couldn't follow instructions, Muskan has said okay.
Sumit says knowledge. Okay, no education. Parts are missing. Okay, that's expertise is not there. Lack of knowledge. Okay. Assembled bed come sofa for Stalin. Okay. So good. We have this good experience. So that's the point that I was trying to bring all of you to. आपका मैं attention वही लाना चाहता था कि DIY बहुत चीजों में हम कर सकते हैं, कर पाते हैं और करते रहते हैं, बट कुछ चीजों में आके DIY चाहते हुए भी, या IKEA के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं बहुत ही डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आते हैं, और इनफैक्ट उसमें जो भी कई बार टूल लगता है या तो छोटा मोटा होता है तो वो भेजते हैं, नहीं तो बताते हैं कि आपको ये टूल की जरूरत पड़ेगी, और 99.9% केसेस में उनके कोई भी पार्ट्स मिसिंग नहीं होते हैं। ये किसी एक दो पार्टिसिपेंट ने लिखा है, बहुत रेयर केस रहा होगा, जनरली IKEA का ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी हम लोग असेंबल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? आप लोगों ने लिखा ऐसा कि लैक ऑफ नॉलेज, पार्ट्स नहीं होना या टूल्स नहीं होना, या तो हम उस पर आते हैं। उसके पहले 1 मिनट हम और स्पेंड करेंगे ये सोचने में या डिस्कस करने में कि हम DIY किन केसेस में करते हैं, कब करते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कारण होते हैं कि हमको लगता है कि DIY कर सकते हैं, हम खुद ही कर सकते हैं, हम डू इट योरसेल्फ कर सकते हैं, हमको कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं चाहिए, किसी और की जरूरत नहीं है। Risk is low. Okay, Muskan, thank you. Abhishek says it's required. Okay, so Omkar says where we have experience to save money, trial and error. When you know that subject, okay, when you have confidence, Manoj says, okay. Once we get enough experience, emergency, when there is no help, then we do DIY. Okay, Joby John says things we know. Dhanraj says we have confidence. Or professional help is costly. Another important point. Urgent work when जब भी होता है, when we know how to do. Okay, Samriddha says ability to convince when you have excess money to lose. Okay, thank you so much. So good points. So you have largely covered कि हम किन situations में DIY करते हैं. जुगाड़, Yogesh says that in India we have a habit of putting जुगाड़ to everybody, but not necessarily. There are a lot of instances and there are a lot of reasons we do DIY, do it yourself. आप लोगों ने बोला है बहुत अच्छे में डिटेल में कि हम किन सिचुएशंस में, necessity is the mother of invention, Kanram says. Okay, fair point. It's always better, Kuldeep says, not necessarily Kuldeep. हम लोग DIY करते हैं जैसा आप लोगों ने बोला, क्यूरियोसिटी, ओके, इन सब केसेस में जब हम, और आपने ये लार्जली कवर कर लिए हैं, पर जो जिन लोगों ने कवर नहीं किए हैं मैं उनके बेनिफिट और नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जब हमको कोई चीज मालूम होती है, हमको लगता है कि हाँ ये हम करते आए हैं या कर सकते हैं या इसकी हमको नॉलेज है, तो हम उसमें DIY लगा सकते हैं. Okay, so some Avi Agrawal has said, what are you referring to DIY? You came late. Okay, DIY simply do it yourself. So जिसमें हमको कुछ मालूम होता है वहां पे हम DIY करते हैं. जब इजीली एग्जीक्यूटेबल और डुएबल होता है, जब हमको लगता है कि ये काम थोड़ा सा आसान है, हम फटाफट कर पाएंगे, तो हम DIY. और जब मैं ये सब बातें बोल रहा हूं तो आप लोग धीरे धीरे बैकग्राउंड में सोचना शुरू कर दीजिए टू लिंक इट टू द डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है. वहां आप कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट लाने की कोशिश कीजिए कि मैं क्यों DIY की बात कर रहा हूं, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि हम DIY कब काम में लेते हैं और उसको हम कैसे लिंक कर पाएंगे हमारे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान से. सो गोइंग बैक, DIY जैसा मैंने कहा, एक तो जब हम कुछ जानते हैं, दूसरा जब कोई चीज इजीली एग्जीक्यूटेबल या डुएबल होती है, तीसरा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, हमको लगता है कि हाँ ये तो सिंपल प्रोसेस है, हम फटाफट कर लेंगे, तो हम DIY लगाते हैं. When not too many equipments are needed. So IKEA के केस में आप में से कुछ लोगों ने बोला था, तो that's the point here कि DIY करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए. अगर आपका 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसका सडनली इंजन खराब हो गया या कुछ हो गया या टायर भी खराब हो गया, अब आपको टायर रिप्लेस करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं. सबसे पहले स्पेयर टायर चाहिए होता है, नट चाहिए होता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है. ऑल दोस थिंग्स यू नीड इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू, and then you need, if it's a 4-wheeler, you need a support to raise the car up. If you don't have all those tools, तो आप टायर जैसा बेसिक चेंज भी नहीं कर पाएंगे. तो आप डू इट योरसेल्फ जब भी करते हैं जब कुछ इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हो, बेसिक चाहिए और वो आपके पास हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लास्ट टाइम लिखी है, ये आप सब ध्यान से पढ़ें, समझें.
जब end results may not be too significantly different. ये एक बहुत yes jack and toolkit and all are what are required for doing DIY. हमको ये कॉन्फिडेंस चाहिए या पता होना चाहिए कि DIY करके डू इट योरसेल्फ करके जो रिजल्ट आएगा वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होगा अगर हम किसी और की हेल्प लेके करते हैं. डिजास्टरस सर्टेनली नहीं होना चाहिए, हम हमारा नुकसान नहीं कर लें. ये कॉन्फिडेंस, ये नॉलेज, ये प्रोसेसेस हमको मालूम होनी चाहिए, तभी हम DIY करते हैं या तभी हमें DIY करना चाहिए. अगर हमको लगता है कि नहीं हम हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, हम कोई टेक्निकल चीज में, जैसे बीच में मेडिसिन की बात आई थी, तो ठीक है, एक बेसिक लेवल की मेडिसिन हम DIY करते हैं, हेडेक हुआ, कफ एंड कोल्ड हुआ, एक सर्टेन लेवल का 1-2 दिन का फीवर भी हुआ, तो तब तक ठीक है. पर उसके बाद अगर हम ठीक नहीं है तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके बाद भी अगर हम DIY करते रहे तो उसका हो सकता है बहुत नुकसान हो जाए, हो सकता है हम उस बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं. So then we need to stop DIY and take professional advice. In case of medicines, the professional advice is nobody but doctor. So that's the most important point. The last point, as I said, that when the end results may not be too significantly different is when we do DIY. So I hope you are clear, and that's what is now taking us to, as I said, you can keep thinking that why I am talking of DIY. How do we now link it to mutual fund space of investing, and within that, how is the connection, what is the analogy to DIY between direct and regular plans? So now can somebody quickly type that when it comes to mutual funds, what is DIY, whether it is direct plan or regular plan, and what is non-DIY? So direct mutual funds are DIY, Navneet has said. Okay. So all of you, yes, you are saying that direct is DIY. So ठीक है, fair point. So when we say that direct plans are DIY, do it yourself, can you now come back into this category and say that all those who are doing DIY or who are choosing direct plans, do we fall somewhere here wherein we say that process is simple? So choosing a direct plan. So since we are talking of DIY, हम लोग बोल रहे हैं कि DIY is direct plan. So डायरेक्ट प्लान को चूज करना पड़ता है, आपको कौन से प्लान में चूज करना है, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी इतनी सारी स्कीम्स है, तो उसका प्रोसेस सिंपल है क्या? अगर हम इस स्लाइड के थर्ड पॉइंट पे आए, व्हाट विल यू से? निखिल सेज यस, मुस्कान सेज नो, हर्षवर्धन सेज नो. ओके, नो, ओके. तो मैं नो को टू सम एक्सटेंट ओके. सो यस, काफी लोग यस बोल रहे हैं और काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग नो बोल रहे हैं, विच इज ओके, फेयर पॉइंट. इनफैक्ट उसके पहले भी हम फर्स्ट पॉइंट पे भी जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट डू वी नो द सब्जेक्ट, डू वी नो द डिटेल्स ऑफ अलग अलग तरह के प्लान. नो, वी नीड सम नॉलेज. ओके, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. वी विल गिव यू when it is easily executable, doable. Do we need any equipments to invest in direct plans? Yes, okay. Only KYC is required. Okay, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, KYC को हम equipment बोलें या नहीं बोलें, that is our choice, but that is something that we need. Of course, when you say KYC, you need to have your identity with you. There has to be a bank account from where you will need to invest. So all those things. What about the last point? The end result may not be too significantly. ठीक है, we'll come to that. So, but good. Thank you so much for your participation and understanding. So now this is where we come that if we don't know DIY, if we can't do DIY, if we are not confident, if we are not comfortable, then obviously what we do is we take professional help. So जैसा मैंने कहा कि when we fall sick beyond 1 or 2 days, beyond the normal diseases of cough, cold, headache, stomach ache, fever, we take professional help, we go and consult a doctor. So the same way anything else. In fact, I gave you an earlier example of teaching our children when they come home from school or their homework. To some extent we do DIY, पर अगर सब्जेक्ट एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड हमको लगता है हमको नॉलेज नहीं है,
तो हम उनको ट्यूशंस करवाते हैं या हम किसी और की हेल्प भी लेते हैं, जरूरी नहीं है ट्यूशन ही करवाएं, हेल्प लेते हैं, तो दैट इज अ प्रोफेशनल हेल्प। सिमिलरली जैसा मैंने कहा कि आइकिया में जब जो एक्सपीरियंस होता है, तो अगर एक स्टेज के बियॉन्ड हम नहीं कर पाते तो देन वी नीड प्रोफेशनल हेल्प, वी हैव टू कॉल अ कारपेंटर टू fit those equipment. So all those are different kinds of professional help. The same is here. So when in mutual fund अगर हम मान लीजिए DIY नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट प्लान किसी वजह से नहीं चूज कर पाते हैं, तो हमको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ये प्रोफेशनल हेल्पर्स इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कौन होंगे? Mutual fund distributor, okay, so ARN is the number of a mutual fund distributor is supposed to have. PMS का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। IFA yes, advisors yes, distributors yes, consultant yes, again IFA, RIA yes. So you have largely covered the different space of the professional help that will be there. Those will either be mutual fund distributors, will either be your brokers, or will you either be your advisors. Those are the three basic category. Of course हम उनको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। हम एडवाइजर्स को बेसिकली टेक्निकली RIA बोला जाता है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। डिस्ट्रीब्यूटर्स को MFD बोला जाता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर MFD। सो ये लोग वो हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट यस, जो हमको इस मामले में प्रोफेशनल हेल्प देंगे। अब हम अगर इनके थ्रू जाएंगे तो वो हमको कौन से प्लान्स में इन्वेस्ट करवाएंगे? रेगुलर, ओके, सब लोगों का आंसर रेगुलर आया है, ओके, क्यों? ठीक है, आई गेट ऑल द आंसर्स। व्हाई विल दे रिकमेंड अस रेगुलर प्लान? और या हमको उनका कमीशन, फीस, ब्रोकरेज, ओके ओके, that's the only option we have. No, you don't have that as an only option. You obviously have a direct plan का option। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि आपको ये लोग डायरेक्ट प्लान भी बता सकते हैं। वो किस केस में बताएंगे आप मुझे बताइए, बिकॉज ऑफ देयर कमीशन यस। तो अगर हम चाहते हैं कि इनमें से कोई हमको डायरेक्ट प्लान रिकमेंड करे, तो वो क्यों करेगा? विजय मीणा हैज सेड फी बेस्ड, ओके। एनीबॉडी एल्स आप और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान क्यों करेगा या क्यों करना चाहिए, और या हमें क्या करना चाहिए कि वो हमको डायरेक्ट प्लान रिकमेंड करे? फीस बेस्ड रिकमेंडेशन, यस, somebody has said, निखिल बंसल has said वन टाइम फीस। अपनी फैमिली को, ठीक है, वो एक अलग एक्सेप्शनल केस हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग इज something that is gray area, so let's not go into that. Okay, so good points, good discussion. Let's just stay on one or two technical terms here. So उसके पहले कि हम और डिटेल में इसको डिस्कस करें, let's see all these things. तो जब इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड अगर हम DIY करना चाहते हैं, डू इट योरसेल्फ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें DIY नहीं करना चाहिए, उस पर हम आएंगे। पर यहाँ पे एक मिनट के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हमको DIY करना है तो सबसे पहले तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की नॉलेज? पूरी ओवरऑल म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स की, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। इनफैक्ट मैंने उसमें लिखा भी है आगे नेक्स्ट उस पे, असेट क्लास, ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर मैंने और उसमें आगे लिखा है सब सेगमेंट्स, ये सब सेगमेंट्स। इन सब से क्या मेरा मतलब है? AMC scheme analysis, according to client we should advise them, okay. Meaning of sub segment, yes, I will tell you, yes. So जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमको कि सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड क्या है एज अ प्रोडक्ट, उसमें क्या क्या कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे हम बोलते हैं बहुत बेसिक प्रोडक्ट है डेट फंड एंड इक्विटी फंड्स, एंड देन ऑफ कोर्स उसके आगे हम जाते हैं तो हाइब्रिड है और कई सारी कैटेगरी आ गई है। फिर हर एक में डेट फंड और इक्विटी फंड में सब सेगमेंट्स हैं। डेट फंड में सब सेगमेंट्स हैं लिक्विड फंड, मीडियम टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड, बॉन्ड फंड, GSEC फंड्स, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही इक्विटी में कैटेगरीज हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए. देन यू नीड टू बी क्लियर whether you want to invest in active funds or passive funds. तो ये सारी बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज अगर आप DIY डू इट योरसेल्फ करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो होनी चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, हाउ टू चूज अ स्कीम. क्योंकि डायरेक्ट प्लान तो आपने डिसाइड कर लिया. हर एक स्कीम का, इस पॉइंट पे मैं बता दूं जो मालूम, जिनको मालूम नहीं उनके लिए, हर एक म्यूचुअल फंड की ऑलमोस्ट हर एक स्कीम में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं. डायरेक्ट प्लान भी मिलेगा और रेगुलर प्लान भी मिलेगा. तो अब आपको रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन तो मिल रहा है, पर अगर आपको बेसिक उसके पहले का ही नहीं मालूम है कि आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या डेट फंड में, या उन दोनों में क्या डिफरेंस है. डेट फंड में अगर आपने चूज कर भी लिया तो उसमें आप बॉन्ड फंड में करना चाहते हो कि गिल्ड फंड में, या उन दोनों में क्या फर्क है वही आपको मालूम नहीं है. ऐसे इक्विटी में आप करना चाहते हो तो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, वो आपको मालूम नहीं है. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उन सब की नॉलेज होके और उसके बाद एक स्कीम को कैसे चूज करना है. तो कोई मुझे बताएगा कुछ बेसिक पैरामीटर्स किसी भी स्कीम को चूज करने के लिए क्या होने चाहिए? क्विकली अगर आप में से कुछ लोग टाइप करेंगे तो. रिटर्न ओके, फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपिटाइट, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, AUM, CAGR, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, एक्सपेंस रेशियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस. रिस्कोमीटर, फंड मैनेजर, ओके ओके, थैंक यू सो मच. सो यस, शार्प, यस, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, यस. ओके, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, यस. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है अगर आप DIY करना चाहते हैं कि किसी भी स्कीम को चूज करने के लिए. इफ यू नोटिस मैंने ये सारे फैक्टर्स लिखे हैं. परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना आना चाहिए. एक्सपेंस रेशियो आपको चेक करना आना चाहिए. और ये सब डिटेल मिलती हैं, ऐसा नहीं कि ये डिटेल मिलती है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे उनका जो स्कीम डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये सब चीजें आपको मिलेंगी. पोर्टफोलियो टर्नओवर, थोड़ा सा हम टेक्निकल जा रहे हैं, बट ये एक दूसरी चीज है जो आपको आनी चाहिए. शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जो स्कीम परफॉर्मेंस विद रेफरेंस टू रिस्क बताते हैं. तो जैसा आप लोगों ने बहुत लोगों ने टाइप किया कि परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड या रिटर्न CAGR होने चाहिए, वो खाली एक फैक्टर है जो बताता है कि स्कीम ने रिटर्न कैसी दी है. रिटर्न विद रेस्पेक्ट टू रिस्क एक डिफरेंट थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है. मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि जैसा मैंने कहा आज का सेशन हमारा डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स पे है. पर वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मालूम करने के लिए शार्प और ट्रेनर रेशियो मालूम होने चाहिए. सो यस, मोहित जैन हैज पॉइंटेड आउट कि मेरी ट्रेनर की स्पेलिंग गलत है. थैंक यू मोहित, आई विल करेक्ट इट नेक्स्ट टाइम. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सबको करने के लिए आपको सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि इन सब की इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. दिस इज नॉट समथिंग जो आप आते जाते चलते फिरते एनालिसिस कर सकते हैं या पार्ट टाइम में कर सकते हैं. अगर आप पार्ट टाइम में करेंगे तो रिटर्न भी आपके पार्ट टाइम ही आएंगे. ये चीज ध्यान में रखिए. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि DIY हमको लगता है हम कर लेते हैं या हमें कर लेना चाहिए, और ऑब्वियसली हम हमारे पैसे बचाना चाहते हैं, बचाना चाहिए भी. हम कोई भी चीज, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे रिटर्न बढ़ जाए. तो रिटर्न बढ़ने का मतलब ये है कि रिटर्न, किसी भी चीज से रिटर्न बढ़ाने के दो तरीके हैं कि एक तो हम रिटर्न बढ़ाएं, एक दूसरा हमारे एक्सपेंसेस कम कर लें. तो एक्सपेंसेस कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो पर वो एक्सपेंसेस हम कम करके DIY करें और हमको ये सब चीजें करना नहीं आता है, तो पता लगेगा कि हम जो एक्सपेंस बचा रहे हैं वो बहुत कम है, और उसके सामने, जैसा मैंने वन ऑफ द अर्लियर स्लाइड्स में कहा था, कि जो इम्पैक्ट है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. ये दिस इज जो ये मैंने कहा था कि the end result may not be too significantly different. अगर हम खुद का दिमाग लगा के without having all that knowledge करेंगे तो then that is something that we need to be very careful about. तो अब हम वापस चलते हैं. that
we should do DIY only if we know all these things, only if we can do all this analysis, and most important, penny wise pound foolish, somebody has written, thank you, that we have time availability to do it, and of course before that a basic knowledge. So first and last point are most important, बाकी सब चीजें उसके बीच में उनके सबसेट हैं. Having a basic knowledge and availability of time to do all this analysis is most important. Now going back, assuming that we don't have all this time, all this knowledge, so we take a decision for a moment that we don't want to do DIY. हम DIY नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल हेल्प लेंगे. तो प्रोफेशनल हेल्प लेंगे कौन होगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, एडवाइजर होगा. अब आता है, हमने जो बात की थी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हमको डायरेक्ट प्लान नहीं रिकमेंड करेगा, रेगुलर प्लान रिकमेंड करेगा. वाई? बिकॉज आप लोगों ने बोला था कि उसमें उसकी फीस होती है, उसका कमीशन होता है. कौन देता है वो कमीशन, कौन देता है वो फीस? डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, एएमसी देती है. ओके, एएमसी और ब्रोकर देता है. ओके, समबडी हैज रिटन इन्वेस्टर देता है. ओके, हम देते हैं. ओके, फंड हाउस देता है. ओके, फंड हाउस और एएमसी जिनको नहीं मालूम सेम ही चीज है. एएमसी ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर. ओके, it's adjusted in NAV. Yes, so good, important point. Now this is where comes the fact which I was saying. हम लोग एक मिनट के लिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर वापस भी आएंगे. यहाँ पे दो मैंने वर्ड लिखे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक एडवाइजर. क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर में क्या फर्क? Advisors are certified by NISM. Okay, distributor will sell. Advisor consulting fees. Okay, advisor who gives you advice. Okay, advisor just advice only. Advisor is fee based. Okay, okay, good, thank you. So important point. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि हम लोग बहुत फ्रीली इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. हम उसी सेम आदमी को डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल देते हैं, एडवाइजर भी बोल देते हैं, ब्रोकर भी बोल देते हैं, इंटरमीडियरी भी बोल देते हैं. कई वर्ड सही है, कई सब वर्ड सही नहीं है. अभी सेबी ने ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटर्स में और एडवाइजर्स में. एडवाइजर आपको एडवाइस दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको एडवाइस नहीं दे सकता. वो आप खाली आपके लिए, आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकता है. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपको एडवाइस नहीं दे सकता है तो वो आपसे एडवाइजरी फीस भी नहीं ले सकता है. और अगर वो आपसे फीस नहीं लेगा तो ऑब्वियसली उसको अपना धंधा चलाना है, अपनी रोजी रोटी चलानी है. ही इज इन दिस लाइन टू मेक मनी फॉर हिमसेल्फ. तो वो किससे फीस लेगा, उसकी कमाई किससे आएगी? डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई एएमसी से आएगी. सो ट्रेल कौन देगा? मनीष, एएमसी से. यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसलिए वो आपको रेगुलर प्लान में रिकमेंड करेगा, क्योंकि रेगुलर प्लान में एएमसी आपसे ज्यादा फीस चार्ज कर रही है जो आपकी एनएवी में से कट हो रहा है. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ ध्यान में रखें कि हमें लगता है कि नहीं, हम डू इट योरसेल्फ नहीं करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हमको रेगुलर प्लान रिकमेंड कर रहा है तो हम तो उसको कुछ भी फीस नहीं दे रहे हैं. ऐसा नहीं है. फीस इनडायरेक्टली हम ही से जा रही है, हालांकि हम नहीं दे रहे हैं, उसको एएमसी दे रही है. तो मैं बहुत ब्रॉडली आपकी समझ के लिए बताऊं तो जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में, और लेट्स हमको स्पेसिफिकली एक इक्विटी फंड का एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो करीब करीब 2% ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट एज अ खर्चा, एज अ फीस चला जाता है. उसमें बहुत सारी फीस होती है, उसमें एएमसी की भी फीस होती है, उसमें एएमसी जो डिस्ट्रीब्यूटर को फीस देगी वो भी होती है, और कुछ दूसरे खर्चे भी होते हैं, और वो रेगुलर प्लान का खर्चा होता है. ये बहुत ब्रॉड नंबर है, इसको आप मानिए, बेंचमार्क मत मानिए, ये आप, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं. एज अगेंस्ट दैट डायरेक्ट प्लान में करीब करीब 50% की सेविंग हो जाती है. रफली 2% के सामने 1% का ही एक्सपेंस रेशो होता है, क्योंकि वो जो 1% डिस्ट्रीब्यूटर को एएमसी दे रही है वो सीधा सीधा बच जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या फर्क है. रेगुलर प्लान में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका खर्चा ज्यादा होता है,
डायरेक्ट प्लान में खर्चा कम होता है। और क्यों होता है वो मैंने बताया आपको, क्योंकि रेगुलर प्लान में से एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी, फंड मैनेजमेंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देती है, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा चलने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर का डे टू डे अर्निंग, दैट्स व्हाट ही इज इन द बिजनेस फॉर, दैट ही वांट्स टू मेक मनी। तो वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो अल्टीमेटली आप नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट, बट वो आपकी ही जेब से जा रहा है, क्योंकि आपने जब रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया तो आपका एक्सपेंस ज्यादा कटा, एज ए रिजल्ट आपका रिटर्न कम आया और वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए गया। अब यहाँ पे हम लाते हैं जो एडवाइजर है उसको, और आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एडवाइजर कौन है? जो एडवाइस करता है। एडवाइजर है जो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। और जब कोई भी एडवाइजर आपको एडवाइस करेगा, जैसे हमने मेडिकल के लिए बात की थी कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे क्या लेगा? फीस। यस, सिंपल। वही फीस जब हमको अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या हमको एडवाइजर की सर्विस लेनी है, और एडवाइजर बोलता है मैं मेरी एडवाइजरी फीस लूंगा या सर्विस चार्ज लूंगा या कंसल्टेशन फीस लूंगा, क्या हम देने को तैयार होते हैं? हमको माइंडसेट वाइज कैसा लगता है? नो। श्रीनिवासन सेज ओके, अभिषेक सेज नो, ओके, सो somebody says yes, no, no, obviously। तो ऐसा क्यों? जब हम बाकी सारे प्रोफेशंस में फीस देने को तैयार हैं, हम डॉक्टर को फीस देने को तैयार हैं, इनफैक्ट हम जो पुराने एग्जाम्पल डीआईवाई के जाएं तो हम अगर हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़वाते हैं तो हमको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। अगर हमारा मोबाइल या लैपटॉप ऑन ऑफ करने से ठीक नहीं होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग फीस देते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आती है तो हम लोग फीस देने से क्यों डरते हैं? यस, सो माइंडसेट है हमारा, लगता है। प्लस हम हिस्टोरिकली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करते आए, जैसा मैंने कहा कि हमको ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, समरेंद्र सेड वेरी गुड पॉइंट समरेंद्र, सो दैट अवेयरनेस आज के सेशन के बाद आपको आ जानी चाहिए कि हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो वो हमको रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करवाता है, जिसमें एनीवे हमारी जेब से ही वो फीस जा रही है। उससे अच्छा है कि हम एडवाइजर को ढूंढें, अच्छे एडवाइजर को ढूंढें, उसकी एडवाइजरी फीस पूछ लें कितनी है, हमको कम लगती है, ज्यादा लगती है, हो सकता है हम निगोशिएट कर लें थोड़ा, पर उससे अच्छी एडवाइस लें और उसकी एडवाइस के पैसे दें और उसके बाद इन्वेस्ट करें, बजाय उसके कि हम डीआईवाई करें। स्पेशली डीआईवाई में जैसा मैंने बोला था कि हमको वो सारे फैक्टर्स पता नहीं है। तो अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने मान लीजिए एग्री कर लिया कि ठीक है मेरे को नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए मैं एडवाइस लेने में इंटरेस्टेड हूं, अच्छा एडवाइजर मैंने ढूंढ लिया और उसको एडवाइजरी फीस देने के लिए भी तैयार हो गए, दे ली। द एडवाइजर शुड रिकमेंड यू डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। ओके, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, ओके, क्यों? बोथ somebody has said, okay, somebody Vinod has said regular plan, okay, both। तो जो लोग बोथ बोल रहे हैं या रेगुलर प्लान बोल रहे हैं, कैन दे टेल मी दैट व्हाई शुड अ एडवाइजर टेल अस टू इन्वेस्ट इन रेगुलर प्लान? बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ही गेट्स एनएवी का कमीशन, ओके, बट दैट्स द पॉइंट। यही चीज मैं हाईलाइट करना चाहता था, हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं दैट अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो आपको एडवाइस नहीं कर सकता, इसलिए एडवाइजरी फीस नहीं ले सकता है, so he will recommend you to invest in regular plan because he will get his commission there। बट अगर आपने एडवाइजर ढूंढा है, उससे एडवाइजरी फीस उसको देने को तैयार है और वो एडवाइस कर रहा है, तो आपको भी मेक श्योर करना है और उसको भी करना चाहिए कि फिर आपको वो डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करवाए। he cannot anyway charge fees from both the ends, he cannot get a commission from the mutual fund company because he is not a distributor, he is an advisor। who is advisor, what are his qualifications, okay, हमारे पास टाइम होगा तो हम आएंगे उस पे, या बल्कि आएंगे ही, पर उसके पहले मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, एम्फसाइज कर दूं कि ये चीज आप बहुत क्लियर फर्क जान लीजिए तीन चार चीजों का। एक तो
डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और एडवाइजर कौन है। डिस्ट्रीब्यूटर जैसा मैंने कहा खाली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, आपके बिहाफ पे एग्जीक्यूट कर सकता है, एग्जीक्यूशन करवा सकता है, इन्वेस्ट करवा सकता है, आपसे फीस नहीं ले सकता है। आपसे नहीं लेगा तो कहां से लेगा? म्यूचुअल फंड कंपनी से लेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी से लेगा तो इसलिए वो आपको रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट करवाएगा, जिसका खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि उस ज्यादा खर्चे में से म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को अपना कमीशन देगी और फीस देगी। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो एडवाइजर को ढूंढिए, एडवाइजर आपसे एडवाइजरी फीस ले सकता है, और उसके सामने मेक श्योर कीजिए, वो खुद भी करेगा, नहीं तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो आपको डायरेक्ट प्लान रिकमेंड करे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस कम है। एक्सपेंसेस आपने इसीलिए बचाए हैं क्योंकि आपने उसकी एडवाइजरी फीस देने को तैयार हो गए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर का फर्क जान लें और उस हिसाब से उनसे बिजनेस, उनसे सर्विस, उनकी गाइडेंस एक्सपेक्ट करें। वही फर्क बैकएंड में आप वापस जाते हैं तो हम रिवीजन के लिए जा रहे हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में हो जाएगा। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस कम होते हैं, रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि रेगुलर प्लान में ज्यादा एक्सपेंसेस आपको चार्ज करके म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है। तो ये डायरेक्ट और रेगुलर हो गया। और जैसा मैंने कहा क्यों, कैसे, कब, वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप DIY करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। DIY you should do only if you have enough knowledge, if you have time, and you can do a basic research. If not, you should not do DIY. You should take the help of a advisor or a distributor. So these things you should need to understand very clearly. हम इन्हीं को और थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। I have already talked to you about who pays distributor. Can quickly some of you revise for me and type who pays the distributor? Yes, AMC pays the distributors. So we have seen that AMC pays to the distributor. From where does it pay? It pays from scheme expenses. And whom those expenses get charged to? Obviously they get charged to the investor. And that's what leads to the regular plan. That, as I said, regular plan is something that he will recommend you because he's getting his commission from there. So I hope it's becoming clearer. कोई question हो तो आप साथ साथ पूछते जाइए. We have already seen who pays. MFD advisor हो सकता है क्या? तो दोनों अलग होते हैं. दोनों अलग होते हैं. सेबी ने दोनों लाइसेंसेस अलग अलग कर दिए हैं. So we have already seen who pays distributor, who pays advisor. We have also seen all these details. Okay, so before I go further, 2-3 important points. आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाले हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स कि इन सब चीजों की नॉलेज कैसे गेन करें, हाउ टू develop your own skill set and knowledge if you want to analyze these mutual funds, how to become distributor, how to become advisor, what are the differences between advisors and distributor, all these. तो उस सब के लिए आपको NISM की तरफ से हेल्प मिलती है. These are some of the things that NISM helps you. So there are certifications which NISM which you can do with NISM. Mutual fund distributor certification exam is something that you can do. ऑफ कोर्स इस एग्जाम को पढ़ने के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जो हमारी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है. एग्जाम देने के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं. सो इवन इफ यू डोंट वांट टू अपीयर इन एग्जाम, यू कैन गो, मैंने यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिया है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड रीड ऑल द मटेरियल and try to gain the knowledge. The other we have, so that was called 5A, is the 5B certification exam, which is the foundation certification exam. So that's the other certification exam that at NISM आप लोग दे सकते हैं. और जैसा मैंने कहा, इसकी भी जो भी स्टडी मटेरियल है वो NISM की वेबसाइट का एड्रेस मैंने यहाँ डाला है, is available for download for free on NISM website.
तो बोथ वेज आप सिंपली नॉलेज गेन करने के लिए भी एनआईएसएम की वेबसाइट पे जाके ये मटेरियल फ्रीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसको एक्सटेंशन करके आप एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हमें सीरियसनेस आती है, उससे हम अपने आप को फोर्स करेंगे पढ़ने के लिए। और स्पेशली अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो बहुत ही, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना है, तो ये सेबी की तरफ से कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि ये सर्टिफिकेशन आपको पास करनी पड़ेगी। और एज एनआईएसएम हम लोग क्या देते हैं, हम लोगों का एक ई लर्निंग प्रोग्राम है म्यूचुअल फंड पे। आज के जमाने में स्पेशली नई जनरेशन के लर्निंग रिक्वायरमेंट्स के मेथड्स चेंज हो गए हैं। हम में से बहुत सारे स्पेशली नई जनरेशन को कंफर्टेबल नहीं है किताब को पढ़ना या पेपर्स को पढ़ना या इवन पीडीएफ को पढ़ना स्क्रीन पे। तो उसके लिए हमने ई लर्निंग मॉड्यूल बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड का, जो नॉमिनल कॉस्ट पे आप हमारी वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इट्स अ फ्लेक्सी टाइमिंग काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप जब मूड हुआ, जितना मूड हुआ, 5 मिनट मूड हुआ, 5 मिनट आपने स्टडी कर लिया, 5 मिनट देख लिया, सुन लिया, फिर 1 घंटे का गैप दे दिया, उसके बाद 10 मिनट फिर सुन लिया, is something that you can do. So that is an e-learning module on the mutual fund that at NISM we provide. It's a 4-hour module. As I said, at a nominal cost, you can subscribe from our website. So that will give you, हमने जो आज बात की है वो तो बहुत ही एक छोटा टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन म्यूचुअल फंड के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इन सर्टिफिकेशन में भी और इस ई लर्निंग मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स हम लोग एक न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं, उस पे मैं बाद में आता हूं। तो कमिंग बैक, so this is where we are in terms of the direct and regular plan. Is there any free certification from NISM? No, as of now I don't think we have any free certification, but still I will tell somebody to check how much money is paid to the mutual fund distributor. So that depends. बहुत रफ बैरोमीटर पे, जैसा मैंने कहा कि रेगुलर प्लान में 2% फीस एएमसी लेती है, उसमें से करीब करीब 1% या उससे कम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, बट दैट्स द बॉल पार्क नंबर। सीपीई में 4 घंटे में ट्रेनिंग होता है क्या? हाँ, कुछ सीपीई में होता है। आप सेपरेटली हमारी कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। डॉक्टर संजय सरदाना सेज आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड एंड टाइप योर क्वेश्चन डॉक्टर संजय। सीएफए एलिजिबिलिटी, मुझे पता नहीं हमारे आज के टॉपिक का उससे क्या कनेक्शन है। सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लान, ओके। मैं आंसर भी करता रहूंगा तब तक, साथ में ये एक जो हमने इतनी देर में डिस्कस किया है उसको अगर एक मैं सिंगल स्लाइड में डालना चाहूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जय कुमार says please mention session language before only so we can plan. So it was indeed mentioned on the website, the link or the webinar detailed advertisement which was there, it was clearly mentioned that the session will be in a mixed language of Hindi and English. So coming back, summarizing this, in any case इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत आसान है कि प्रेजेंटेशन मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है, तो आप यू कैन रीड द प्रेजेंटेशन इवन इफ यू कांट अंडरस्टैंड द हिंदी दैट आई एम स्पीकिंग दूसरे लोगों के बेनिफिट के लिए। तो इट्स अ मिक्स, आई एम श्योर both those who understand English and those who understand Hindi can benefit from it. So very quickly, direct mutual fund हमने देख लिया है, directly offered by the fund house. As against that, regular mutual fund is bought through an intermediary whom we will call distributor, not necessarily an advisor. In direct mutual fund, no involvement of third party agents, brokers or distributors. ये एक रिलेशनशिप है जो डायरेक्ट आपके और म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में है, एएमसी के बीच में है। आप एएमसी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट प्लान्स खरीद सकते हैं, उसमें आपको किसी भी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है। In case of regular, of course, you need intermediary who can be a broker, advisor or a distributor. Again, direct plan में no commission and brokerage हम देख चुके हैं कि उसमें न तो हमारे जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसके एक्सपेंसेस में कटता भी नहीं है और उसकी वजह से ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं जाता है। In regular plan, commission and brokerage is paid to the distributor and that gets charged from us only.
हाउ टू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस, मनोज नायक हैज आस्क्ड। ओके, तो सबसे पहले आप वो जो दोनों सर्टिफिकेशन मैंने स्पेशली उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का मॉड्यूल है वो जाके आप डिटेल में पढ़िए, उसका एग्जाम दीजिए, उसका एग्जाम देके आपको सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। What will happen when we change regular plan to direct plan and continue the SIP? Okay, so SIP तो आपको अगर चेंज करना है तो आपको वापस से जाके पूरा SIP पुराना बंद करके नया SIP चालू करना पड़ेगा इन अ डायरेक्ट प्लान। आप सिंपली यू कैन नॉट चेंज SIP by simply changing the plan. Does advisor charge less than the distributor earns? Yes, so advisor will charge you one time. डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो लाइफ टाइम जाता है, ये चीज आप ध्यान में रखें। अगर आप 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हर 5 साल आपका एक्सपेंस कटता है और हर 5 साल डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। 10 साल रहते हैं तो 10 साल कटता है और 10 साल डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। एज अगेंस्ट दैट एडवाइजर, डिपेंडिंग ऑन आप उससे क्या निगोशिएट करते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एग्री करते हैं, आप उसको वन टाइम फीस देके वन टाइम लिस्ट ऑफ कौन से 2 या 3 या 5 म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान्स में आपको इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो पूरी स्टोरी नहीं है, क्योंकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को रिविजिट भी करते रहना पड़ेगा और उस रिविजिट करने के लिए आपको फिर से एडवाइजर के पास जाना चाहिए, जाना पड़ेगा और उस टाइम में आप फिर से एडवाइजर से अपनी फीस निगोशिएट कर सकते हैं। तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। कई एडवाइजर होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप वन टाइम फीस देना चाहते हैं तो इतनी मैं फीस लूंगा और ये चीज आपको एडवाइस करूंगा। कई होंगे जो बोलेंगे मैं आपको साल भर एडवाइस करता रहूंगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स मॉनिटर करूंगा, सारे म्यूचुअल फंड्स मॉनिटर करूंगा और उसके सामने ये मेरी ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस पे फीस रहेगी जो मैं साल के शुरू में ले लूंगा या हर क्वार्टर के एंड में लूंगा या साल के एंड में लूंगा। तो वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कमिंग बैक, डायरेक्ट प्लान्स हैव लो एक्सपेंस रेशियो, हम देख ही चुके हैं क्योंकि उसमें हम कमीशन देने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं काट। हाई एक्सपेंस रेशियो as there are commissions to be paid in a regular mutual fund, obviously because of the higher expense इसकी NAV आपकी रेगुलर प्लान की मार्जिनली कम होगी कंपेयर टू द डायरेक्ट प्लान जिसमें ज्यादा होगी, ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंस उसमें कम है। और अगर एक्सपेंस कम है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट प्लान का रिटर्न ज्यादा होगा और रेगुलर प्लान का रिटर्न थोड़ा सा कम होगा डायरेक्ट प्लान के बजाय। तो आई थिंक ये चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, तो आपको कुछ समझ आई होंगी। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, तो एक दो स्लाइड्स मेरी और हैं, तो कुछ होगा तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आर दी एडवाइजर्स टू बी सर्टिफाइड बाय NISM? एडवाइजर को सर्टिफिकेशन NISM का देके रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फाइनल रजिस्ट्रेशन सेबी देता है। कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गिव NISM एग्जाम? यस, NISM एग्जाम कैन बी गिवन बाय एनीबॉडी। रजिस्ट्रेशन सेबी के पास कौन कर सकता है नहीं कर सकता है वो उसके कुछ सेपरेट कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट एग्जाम देने के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई भी एग्जाम दे सकता है। Shall we get recording of session? Yes, our recording of the session will be put on the website. Percentage difference between return of direct and a regular plan, somebody has asked. So on a very broad basis, as I said, and these numbers I am quoting only to clarify your understanding. Please look at the exact numbers on the mutual funds website on the respective scheme document of each company. As I said earlier, on a very broad basis, 1.5 to 2% expenses are charged by the mutual fund company in regular plans. Out of that 1.5 to 2%, roughly 40 to 50% is paid to the distributor. So as a result, what happens? If you get a 10% return in 1 year, if you invested 100, your return became 110, about 2 rupees will be get deducted, you will get only 108. As against that, if you have invested in a direct plan, the expenses are half. Instead of a 1.5 to 2%, only about 1% will be deducted as expense. So the 108 NAV which you get in regular plan, in direct plan you will get 109. So that is the difference that will be there. It may not look small to you, it may look small to you, it depends on your perspective. Of course,
over the years, excuse me, when the compounding happens, then this 1% difference of expenses starts to make a big impact on your overall portfolio. Can an individual do the job and also become distributor at the same time? I think yes. जैसा मैंने कहा कुछ कंडीशंस हैं, इनफैक्ट ये आपकी कंपनी अलाउ करती है कि नहीं, उस पे ज्यादा देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन आस्किंग शार्प एंड ट्रेनर. सो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी इन्वेस्टिंग उसमें बहुत सारे डिटेल टर्म्स होते हैं. शार्प और ट्रेनर आर डिटेल्ड स्टडी a topic in itself. Hopefully we will take one day that topic and explain to you. आज के टॉपिक में आई वांट कि जो ऑडियंस डायरेक्ट और रेगुलर प्लान समझने के लिए रजिस्टर की है, मैं उनको ज्यादा एड्रेस करूं. सो कंटिन्यूइंग more or less the same thing. Excuse me. Which I already told you earlier. Direct plan facilitates investors to invest directly in the mutual fund scheme offered by the fund house. Investors can bypass the distributor channel. Direct plan obviously has a lower expense ratio. Will there be any difference in service in direct and regular, like issues in redemption? No. No. AMCs don't differentiate while giving you service standards, whether you invest in regular plan or in direct plans. It is the same service standard which is prescribed and adhered as already a code of service conduct by them. Should we select direct plans from platforms like Grow or AMC? Yes, but as I said, first of all, you have to think that do you have enough knowledge and time to analyze, to be able to understand which schemes, which sub-segments, and then after that, obviously, whether you choose it from directly from the investor website, directly from the investment company's website, or from any of these platforms, it doesn't matter. You can choose the direct plans even from any of the apps. Going back, standard and regular plan, investors go through the distribution channel, whereby the investments are done through mutual fund distributors, agents, relationship manager, advisor, whatever we want to call them. Servicing issues are taken care by distributor, but at the same time, as I said, there are no difference in service standards. But हाँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रोकर को तुरंत फोन करके बोल सकते हैं कि मेरा आज रिडेम्पशन कर दो या मेरा सब्सक्रिप्शन कर दो. Of course, subject to KYC or OTP and all those requirements that will have to be met. In case of direct plan, क्योंकि आपका कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं, आपका कोई ब्रोकर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा. आपको खुद म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या जो भी आप दूसरे ऐप या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वहां जाके खुद सब्सक्रिप्शन, रिडेम्पशन, पार्ट एडिशन, पार्ट विड्रॉल, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा. How shall we start mutual fund distribution business as an individual or as a sole proprietorship? That depends on your individual preference and generally tax consideration के basis पे ये लोग decide करते हैं, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. I don't think I can guide you on that. That will depend on your individual conditions. Going back, standard plan commands high expense ratio. We have already seen that, and returns fetched under standard plan could be, not could be, they will generally be little more. So again, this is where we are largely, we will slowly be coming to the, you are the best teacher. Okay, Chetan has said, thank you Chetan. The idea is आपको समझ में आना चाहिए, आपको clearly कोई चीज पता पड़ जानी चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया था, has that been met or not. STC and LTCG, are they at 15 and 10? Yes, they are. What is sharp and trainer? As I said, that's a detailed topic. मैं फिर से खाली रिपीट कर दूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न देखते हैं वो एक पर्सपेक्टिव है देखने का कि कितना रिटर्न आया, 10% आया, 8 आया, 12 आया, 15 आया, एक साल में कितना आया, 2 साल में कितना आया, 3 साल में कितना आया. वो पॉइंट टू पॉइंट हमको रिटर्न दिखते हैं, रोलिंग रिटर्न भी दिख सकते हैं. पर आप लोग सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट कितना वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है. तो जब भी नीचे आता है मार्केट, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रॉ डाउन, कि आपकी एनएवी कितनी गिरी और कितना रिस्क पोर्टफोलियो में है. और रिस्क के साथ में जब अगर हम रिटर्न को लगाएं तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न एक कॉन्सेप्ट होता है
जो शार्प और ट्रेनर रेशो से कैलकुलेट किया जाता है। तो वो थोड़े से टेक्निकल टर्म है, इसलिए आज इतने शॉर्ट क्लास में वो लेना संभव नहीं। I think we will end here. There are quickly any last 1 or 2 questions and I can take that. Nice webinar. Thank you. Thank you to you also for attending. Which license should a startup get for selling direct mutual fund and on its online website and app? Ideally an advisory license. Is there any difference in NAV of direct and regular plans? Yes. वही हम इतनी देर से कोशिश कर रहे थे गजेंद्र कि there will be difference in return, there will be difference in NAV also. Okay, so we end this session for today. हमारी NISM की वेबसाइट पे और जितनी भी अलग अलग वेबिनार्स होती रहती हैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपको सारी डिटेल मिलती रहेंगी। आप ऑलरेडी जब रजिस्टर करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमको देते हैं, तो आपकी ईमेल में जाके स्पैम चेक कीजिए, तो हमारी तरफ से ईमेल भी आपको ये सब चीज़ों के लिए आती रहती है। आप हमारी वेबसाइट जनरली भी देख सकते हैं, हमारे सारे सर्टिफिकेशन की डिटेल्स उस पर है, हमारे सारे ई लर्निंग मॉड्यूल्स की डिटेल उस पर है, जैसा मैंने कहा जो वेबिनार और प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं उसकी डिटेल उस पे है, और वो काफी नॉलेजेबल है और जरूरी है। और एक चीज जरूरी है कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में जब हमको ऑथेंटिसिटी पता नहीं है कि जो हमको कोई भी चीज बता रहा है समझा रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, NISM जो सेबी की एजुकेशनल इनिशिएटिव है, आपको सारी चीजें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच। Pragya, over to you. Thank Kun sir for this very informative session. I trust that the session provided clarity and resolved the doubts of the participants. Thanks to all the participants for attending the session. Thank you all.